اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. دنیا کی پہلی ہاسپٹل ٹرین لائف لائن ایکسپریس پہنچی بھٹکل. 21 دن عوام کے لیے مفت علاج کا رہے گا انتظام. منکی مسلم خلیج کونسل اور منکی مسلم یوتھ فیڈریشن کی جانب سے مفت طبی آنکھوں کا کیمپ. کونسلروں کا انتخاب میٹنگوں کے لیے نہیں خدمت خلق کے لیے ہوتا ہے. سی اے خلیل صاف اور محفوظ بھٹکل پروگرام کا کامیاب انعقاد. ہریانہ میں بھی گو رکشا کے نام پر غنڈہ گردی. میوات میں وسیم کو بری طرح زدوکوب کیا گیا. راہل گاندھی نے منوہر پریکر اور RSS کو لیا آڑے ہاتھ. کہا نفرت بزدلوں کا ہتھیار. مسلمان مہاجرین کی مخالفت کرنے والا جرمن ممبر اسمبلی ورنن کلان مسلمان ہو گیا. ناظرین اب خبریں تفصیل سے. بھٹکل دنیا کی پہلی ہاسپٹل ٹرین لائف لائن ایکسپریس آج صبح بھٹکل ریلوے اسٹیشن پہنچی، جہاں اس کے استقبال کے لیے حکومت کرناٹک کی کئی اعلیٰ افسران سمیت تعلقہ انتظامیہ کے افراد بھی موجود تھے. اس موقع پر شمالی کینرا ضلع کے ڈپٹی کمشنر SS نگل نے اس کا افتتاح کیا. فکر و خبر کے مطابق مذکورہ ٹرین لائف لائن ایکسپریس دنیا کی پہلی ہاسپٹل ٹرین ہے جو مختلف علاج و معالجے کی تمام سہولیات سے لیس ہے. اس ٹرین کی کئی ایک خصوصیات ہیں. اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ اسپتال میں علاج و معالجے کے لیے جتنی ضروری اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے وہ تمام تر سہولیات اس میں موجود ہیں، حتیٰ کہ آپریشن تھیٹر سے لے کر چیک اپ روم اور دیگر مشینریاں بھی موجود ہیں. 16 جولائی 1991 سے شروع ہونے والی یہ ٹرین اپنے 25 سال مکمل کر لی ہیں. اب تک ملک میں تقریباً 90,000 کلومیٹر کا سفر طے کر چکی ہے، جس کے دوران قریب 10 لاکھ افراد اس کی سہولیات سے مفت فائدہ اٹھا چکے ہیں اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے. بھٹکل ریلوے اسٹیشن کو پورے ضلع کا سینٹر بنایا گیا ہے، جہاں لائف لائن ایکسپریس 1 اگست سے 21 اگست تک رہے گی، جس میں مختلف تاریخوں میں مختلف علاج کیے جائیں گے. لائف لائن ایکسپریس کی جانب سے دی گئی اطلاع کے مطابق چیک اپ بھٹکل سرکاری اسپتال میں کیا جائے گا اور آپریشن کی ضرورت پڑے تو اس کے لیے ٹرین میں مفت اس کی سہولت فراہم کی جائے. یاد رہے اس ٹرین کو امپیکٹ انڈیا فاؤنڈیشن نے حکومت ہند کی مدد سے تیار کیا اور جنوبی کینرا کے تمام تر اخراجات امارت ایئر لائن فاؤنڈیشن نے اپنے ذمہ لیے ہیں، جس کی نگرانی حکومت کرناٹکا کر رہی ہے. علاج کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں. آنکھوں کا معائنہ 2 اگست سے 30 اگست، اگر سرجری کی ضرورت پڑی تو 3 اگست سے 9 اگست تک. ہڈیوں اور پولیو کا علاج 14 سال سے کم عمر بچوں کے لیے 10 اگست سے 11 اگست تک، اگر سرجری کی ضرورت پڑی تو 11 اگست سے 13 اگست تک. اسی طرح ہونٹ سے جڑے امراض یعنی کٹے ہونٹوں کے لیے معائنہ 10 اگست سے 11 اگست تک، اگر سرجری کی ضرورت پڑی تو 11 اگست سے 13 اگست تک. دانتوں کا علاج بھی کرایا جائے گا. معائنہ 8 اگست سے 14 اگست تک، اگر اس کی سرجری کی سہولیات یہاں پر دستیاب نہیں ہیں. مرگی کا علاج 19 اگست سے 21 اگست تک، اس کی سرجری کی بھی سہولیات یہاں دستیاب نہیں ہیں. اسی طرح اگر کان کی بیماری کا علاج کرانا چاہتے ہوں تو 14 اگست سے 16 اگست تک، اگر سرجری کی ضرورت پڑی تو پھر 15 اگست سے 21 اگست تک اس سہولیات فراہم کی جائیں گی. منکی مسلم خلیج کونسل اور منکی مسلم یوتھ فیڈریشن کی جانب سے مشترکہ طور پر آج منکی میں مفت طبی آنکھوں کا کیمپ کا انعقاد کیا گیا تھا. صبح 9:30 بجے شروع ہو کر یہ کیمپ دوپہر 2 بجے تک جاری رہا، جس میں قریب 216 افراد نے اس کیمپ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا علاج کرایا. اس موقع پر اڈپی نیترالیہ اسپتال سے آنے والی ڈاکٹروں کی خصوصی ٹیم نے مریضوں کے آنکھوں کے معائنے کے بعد قریب 24 مریضوں کے آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جس میں 16 مریضوں کو مذکورہ اسپتال لے جایا گیا اور چند ہی روز میں بقیہ 8 مریضوں کا بھی آپریشن کیا جائے گا. اس کے علاوہ 216 مریضوں میں سے 84 افراد کو مفت عینک تقسیم کیے گئے. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے محتمی مدرسہ رحمانیہ منکی و قاضی جماعت المسلمین منکی مولانا
शकील अहमद सुकरी नदवी ने कहा कि आँखों की बीमारी आम होती जा रही है और इस मैदान में खिदमत करने वाले काबिल मुबारकबाद हैं। मौलाना ने खिदमत खल्क को बेहतरीन अमल करार देते हुए कहा कि चंद रोज़ कबल मुझे कुमटा में मुनक़िद आँखों के मुफ्त तिब्बी कैंप में शिरकत का मौका मिला, जहाँ मैंने देखा कि सुबह से शाम तक सैकड़ों मरीज़ आ रहे हैं और उसके फ़ायदा उठा रहे हैं। मौलाना ने मज़ीद कहा कि आज यहाँ ये मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया है, जिससे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। इस मौके पर मनकी जमात मुस्लिमीन के नायब सदर जनाब शाहुल हमीद शेख, मुस्लिम कैनरा खलीज कौंसिल के सदर जनाब अबू मोहम्मद मुख्तसर, ज़िला पंचायत मेंबर दीपक नायक और दीगर ज़िम्मेदारान इस वक्त मौजूद थे। मुलहुज़ रहे कि मनकी मुस्लिम यूथ फेडरेशन के क़याम की 1.5 साल की कलील मुद्दत में इस प्लेटफॉर्म से अब तक 3 मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया जा चुका है। भटकल राबिता सोसाइटी भटकल और मजलिस इस्लाह तंजीम भटकल की जानिब से मुश्तरका तौर पर आज शाम 5 बजे अंजुमन ग्राउंड भटकल में साफ भटकल और महफूज भटकल के उन्वान पर एक बेहतरीन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था, जिसमें कई लोगों ने मज़कूरा उन्वान पर अपने मुफीद मशवरों से नवाजते हुए अमली तौर पर इस मैदान में काम करने का आज़म ज़ाहिर किया। इस मौके पर जलसे की सदारत कर रहे अंजुमन हामी मुस्लिमीन भटकल के साबिक सदर डॉक्टर सैयद खलील रहमान साहब ने भटकल में सफाई सुथराई के मसले को लेकर अपने दुख दर्द का इजहार करते हुए कहा कि गल्फ़ में हमारे अक्सर लोग मुकीम हैं और वहाँ साफ़ सुथराई के माहौल से जब वो भटकल पहुँचते हैं तो उन्हें हर तरफ गंदगी नजर आती है। इस मसले पर इससे पहले भी कई मरतबा बातचीत हो चुकी है, लेकिन इसका सही हल अभी तक सामने नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कि इस मसले में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के साथ साथ आवाम की भी कुछ गलतियाँ हैं। अक्सर कचरा उठाने के मसले को लेकर शहर के लोग परेशान हैं और कई मरतबा मैंने खुद महसूस किया कि फ़ोन करने के बावजूद बल्दिया के लोग नहीं पहुँच पाते, जिसकी वजह से कचरों में बदबू पैदा हो जाती है। उन्होंने काउंसलर्स को भी इसका जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि कचरा उठाने के मामले में काउंसलर्स भी अपनी जिम्मेदारियाँ सही तौर पर अदा नहीं कर रहे। हमारे बल्दिया की जानिब से जो लोग इस काम के लिए मुख्तस किए गए उनकी सही निगरानी न होने की वजह से ये मसला संगीन तरीन बनता जा रहा है। उन्होंने नौजवानों को मुखातिब करते हुए कहा कि अपने कॉलोनी और महल्लों में साफ़ सुथराई के सिलसिले में खुद अपने आप को फिक्रमंद होने की ज़रूरत है। आपका एक काम है कि अपने इलाके के काउंसलरों से रब्ता करके उन्हें बुलाया जाए और जो काम बाकी है उनसे कराया जाए। काउंसलर सिर्फ मीटिंगों में शिरकत के लिए नहीं चुने जाते, बल्कि कौम की खिदमत के लिए उनका इंतखाब किया जाता है। उन्होंने इस मौके पर बरमला इस बात का इजहार किया कि हिंदुस्तान में मैसूर जब साफ़ सुथरा शहर हो सकता है तो भटकल क्यों नहीं हो सकता। सफाई के मसले पर उन्होंने आवाम को भी जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि शहर में ऐसी कई जगह हैं जहां पर बोर्ड लगाए गए हैं कि यहाँ कचरा ना फेंका जाए, लेकिन इसके बावजूद आवाम इसको नज़रअंदाज करते हुए वहीं पर कचरा फेंक देते हैं। कचरे को लेकर हमें संजीदा होकर काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि सफाई और सुथराई ना होने की वजह से जितनी बीमारियाँ पैदा होती हैं वो किसी और चीज़ से पैदा नहीं होती। बल्दिया इस मामले पर काम नहीं करेगी तो हमें मजबूरन आवामी मुहिम चलानी पड़ी। महफूज भटकल पर भी उन्होंने गुफ्तशुनीद करते हुए हिंदुस्तान में आबादी के तनासुब के लिहाज से यहाँ 2 पहिए वाली सवारियों की ज़्यादती का तस्करा करते हुए तशवीश का इजहार किया और बढ़ते सड़क हादसात पर तशवीश का इजहार करते हुए वालिदैन सरपरस्तान की तवज्जो मबजूल करवाई कि बच्चों के हाथ में गाड़ी ना दे, सड़क के उसूल ज़वाबित पर अमल करते हुए गाड़ियाँ चलाई जाए। अक्सर देखा जाता है कि लाइसेंस के बगैर गाड़ियाँ चलाई जाती हैं और हद से ज़्यादा रफ्तार तेज़ रखते हैं, जिससे भी हादसात रोनुमा हो जाते हैं और उसके संगीन नताइज हमें ही भुगतने पड़ते हैं। मजलिस इस्लाह तंजीम के नायब सदर जनाब इनायतुल्लाह शाह बंदरी ने कहा कि हमें जो भी परेशानियां हों वो जिम्मेदारान के सामने रखें। आमतौर पर ये देखा जाता है कि लोग अपनी तमाम तर ज़रूरियात के लिए जहां भी जाना पड़े वो जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन बल्दिया के ताल्लुक से कोई शिकायत हो तो बल्दिया में आकर शिकायतें करने के बजाय लोगों में उसका तस्करा करते घूमते हैं। हमारे लिए कानून का दरवाज़ा खुला है, अपनी शिकायतें काउंसलरों के पास पहुँचाए। नहीं काम हो रहा है तो ऑफिसर से बात कीजिए, इस पर आपको इत्मीनान नहीं है तो असिस्टेंट कमिश्नर से रब्ता कीजिए। इसके बावजूद आपकी शिकायत बाकी रहती है तो DC के सामने मसाइल रखकर इसका हल निकाला जा सकता है। उन्होंने सफाई के मसले पर आवाम को जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि हम बड़ी हिफाजत के साथ अपने घरों से कचरा उठाकर फेंकने के लिए मुताल्लिका जगह पर ले जाते हैं और उसको डिब्बों में फेंकने के बजाय हम इसके बाहर फेंक देते हैं, जिसके नतीजे में जानवर आकर इन कचरों और फजलाजात को फैला देते हैं। उन्होंने आवाम से दरख्वास्त की कि हमें भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की ज़रूरत है। रुकन असम्बली मुनका अलवैदा ने साफ भटकल और महफूज भटकल के उन्वान पर काम के जज्बे की सराहना करते हुए कहा राबिता और तंजीम को दिली मुबारकबाद है और इस सिलसिले में जो भी हो सके हत्तल इम्कान ताउन पेश करने की यकीन दहानी दी। काजी खलीफा जमात मुस्लिमीन भटकल मौलाना ख्वाजा मोइनुद्दीन नदवी ने कहा कि इस्लाम में सफाई की अहमियत के उन्वान पर अपनी बात पेश करते हुए 1400 साल पहले हमें ये बात समझाई गई है और इसकी नसीहत की गई है। हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम पर अमल करने वाले बन जाएं। दरअसल पुराने सबक को दोहराया गया है और याद दिलाया गया है, क्योंकि हदीस में तहारत को निस्फ ईमान कहा गया है। इस मौके पर दीगर कई अहम मेहमानान बरादरान वतन में मुअज़्ज़ज़ मेहमानान भी अपने ख्यालात का इजहार किया। राबिते के जनरल सेक्रेटरी मुहिद्दीन रुकनुद्दीन साहब ने आगाज़ में ही साफ़ और महफूज भटकल के मनसूबों पर रोशनी डाली और उसको किस तरह अगले दिनों में आवाम के सामने पेश किया जाएगा उसकी भी तफसीलात रखी। तंजीम के सदर मुज़म्मिल क़ाज़िया साहब ने मेहमानों का इस्तकबाल किया, जबकि जनरल सेक्रेटरी अल्ताफ़ खरूरी साहब ने तंजीम के कारनामों को और खिदमात को आवाम के सामने रखा। आखिर में उस्ताद हदीस जामिया इस्लामिया भटकल मौलाना ख्वाजा मोइनुद्दीन नदवी की दुआए कलिमात पर यह जलसा अपने इख्तिताम को पहुंचा, जबकि निज़ामत के फ़राइज़ जनाब माज शाह बंदरी ने बहुस्न खूबी अंजाम दी। हरियाणा
मुल्क भर में गौरक्षा के नाम पर भगवा तंजीमों की हैवानियत के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। दादरी से लेकर मंदिर तक भगवा तंजीमों की इस हैवानियत को बैनुल अक़वामी मीडिया ने अहाता करके हिंदुस्तान में अक़लियती कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ पर सवालिया निशान भी लगाया है। ऐसे में अब फिर हरियाणा से गौरक्षा के नाम पर मुस्लिम नौजवानों को पीटने की वीडियो सामने आई है। मालूमात के मुताबिक ये वीडियो 6 मई को बनाई गई थी, लेकिन जुमा 29 जुलाई से वायरल होना शुरू हुआ। इस वीडियो में 20 साल के वसीम को बुरी तरह से मारा पीटा जा रहा है। वसीम हरियाणा के मेवात का रहने वाला है। वसीम को गाय की गोश्त के इल्ज़ाम में मारा पीटा गया। वीडियो बना रहे शख्स की शनाख्त राजू सिंह के नाम से हुई है। वो झज्जन का रहने वाला है, युवा मोर्चा का कारकुन भी है। वीडियो गौरक्षक वालों ने खुद ही फेसबुक पर शेयर किया था। मोनू नाम के शख्स ने इसे फेसबुक पर शेयर करते हुए लिखा है कि गौरक्षक टीम की तीसरी कामयाबी है। नई दिल्ली, कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने अदाकार आमिर खान से मुतालिक बयान देने पर वजीर दिफा मनोहर पर्रिकर पर वार करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस मुल्क में नफरत फैलाना चाहता है। मिस्टर गांधी ने अपने ट्विटर पोस्ट में कहा कि आरएसएस और पर्रिकर जी हर एक को सबक सिखाना चाहते हैं। आपके लिए भी एक सबक है, नफरत बुज़दिलों का हथियार है, उससे कभी जीत हासिल नहीं होती। बाद में कांग्रेस के तर्जुमान आला रणदीप सुरजेवाला ने इसी ट्वीट का इरादा किया है। उन्होंने मिस्टर पर्रिकर पर यह कहते हुए हमला किया कि उनका बयान ये साबित करता है कि मुल्क में हर तरह के एहतिजाज को कुचलने और दलितों और अक़लियतों को हरासा करने की साजिश की जा रही है। अनकरा, जर्मनी में इंतहाई दाएं बाजू की डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर असम्बली वर्नर कलान ने 75 साल की उम्र में इस्लाम कबूल कर लिया है। इससे कबल नकल मकानी और मुहाजिरीन की सख्त मुखालिफत के साथ पहचाने जाने वाले कलान अब शामी, इराकी और अफगान मुहाजिरीन के सबसे बड़े हिमायती बन गए हैं। जर्मन रोजनामा ब्लड के इंटरव्यू के हवाले से तुर्की की सरकारी रेडियो ने लिखा है कि कलान ने, जिन्होंने अपना नाम इब्राहिम रख लिया है, का कहना है कि उन्होंने नामवर जर्मन शायर वुल्फ गेंग ओन को गोथे के मशरिकी दीवान में दीन इस्लाम और पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में तहरीर करदा अशार को पढ़ने के बाद इस्लाम को करीब से जानने की कोशिश की। फिर मैंने कुरान करीम की जर्मन ज़बान में तफसीर को पढ़ने के बाद दीन इस्लाम से मुशर्रफ होने का फ़ैसला किया। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी, ख़लीजी, मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएँ। फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की नशर व इशाअत में इदारे का ताउन करने वाले अहम तिजारती इदारे अली एजुकेशनल बुक हाउस भटकल, भटकल ट्रैवल हाउस भटकल, रिपको भटकल, अफ्रीका सुपर वालियो दुबई, स्टारवे ट्रेडिंग दुबई, खालिद कमीस अब्दुल्ला ट्रेडिंग दुबई।